Hello, my dear student. Today we will start a new lesson of moral science. Smart kid. Smart kid. Getting organized. तो बच्चों ये 7th चैप्टर है स्मार्ट किड. तो ये चैप्टर हम अभी शुरू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इस स्टोरी में क्या क्या है हम अभी जानेंगे. ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके. Many times we waste time and energy in finding our own things. This is because we do not keep things at the right place and later waste time looking around for them. If we choose to be organized, our life will be under control. We will save a lot of time. तो बच्चों कई बार हम अपनी चीज़ को ढूंढने में समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं. ऐसे इसीलिए ही क्योंकि हम चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते हैं और बाद में टाइम वेस्ट करते हैं. ये काम यदि हम ऑर्गेनाइज्ड होने चुनते हैं तो हमारे जीवन कंट्रोल में रहेगा. हम बहुत समय बचाएंगे भी. ओके. One day, Rehan was late for school. His teacher, Miss Paul, asked him, "Why are you late, Rehan?" Rehan said, "Teacher, I could not find my pen box this morning. I searched for it for a long time in my house. After 2 hours, at last I found it on my brother's bed." That was his answer. एक दिन रेहान को स्कूल जाने में लेट हो गया. उनका टीचर मिस पॉल ने उनसे पूछा, रेहान तुम हर बार लेट क्यों होते हो? रेहान ने कहा, टीचर मुझे आज सुबह अपने पेन बॉक्स नहीं मिला. मैंने अपने घर में लंबे समय तक इसे ढूंढने में 2 घंटे लगा. 2 घंटे के बाद आखिरकार मैं इन्हें अपने भाई के बिस्तर मतलब बेड पर पाया. ओके. यही उसका जवाब था, मतलब यही उसका आंसर था. That day, the teacher accepted his answer. A few days later, Rehan was again late for school. This time, he told a funny story. He said, "Teacher, I could not find my shoes this morning. I searched for them in every corner of the house." "Where did you find your shoes then?" asked Miss Paul. "Teacher, I found one under the bed and the other on top of the cupboard," replied Rehan. उस दिन टीचर उसका आंसर स्वीकार मतलब एक्सेप्ट कर लिया. कुछ दिन बाद रेहान फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया. इस बार उन्होंने एक मज़ेदार जोक सुनाया. मैंने घर की हर कोने में उसे ढूंढा. तब आपको अपने जूते कहाँ मिले? मिस पॉल ने पूछा. टीचर मुझे एक बिस्तर के नीचे और दूसरे अलमारी के ऊपर मिला. रेहान ने जवाब दिया. रेहान ने रिप्लाई किया. ओके. तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए. अब जाएंगे हम नेक्स्ट पेज नंबर 33. मिस पॉल asked, "How did the shoes come to be in the wrong place?" "Last night I went out for dinner with my family. We returned late. I kicked my shoes off too hard. One of them dropped it onto the bed and the other fell on top of the cupboard," Rehan explained to his teacher.
पॉल ने पूछा, जूते गलती जगह पर कैसे आए? रेहान ने अपने टीचर को समझाया, कल रात में अपनी परिवार मतलब फैमिली के साथ खाने मतलब डिनर के लिए बाहर गया था। ओके, तो हम लेट से लौटे। मैं अपने जूते बहुत ज़ोर से फेंक दिया। उनमें से एक बिस्तर के नीचे गिरा और एक अलमारी के ऊपर गिरा। The whole class roared into laughter. Rehan was ashamed of his explanation. उसके बाद पूरा क्लास हंसते रह गए। रेहान को उनके समझ आने पर शर्म आ रही थी। ओके, मिस पॉल called Rehan and said, Rehan, this is not a good habit. You should learn to be organized. You must keep your things at proper places before you go to bed. Your bag, books, shoes and pen box must all be ready before you sleep. In this way, you will not waste your time searching for them in the morning before coming to school. मिस पॉला ने रेहान को अपने पास बुलाकर बोले कि रेहान, ये एक अच्छी आदत नहीं है। आपको ऑर्गेनाइज्ड होने सीखना चाहिए। बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपनी चीज़ को सही जगह पर रखना होगा। आपको आपका बैग, बुक, जूते और पेंसिल बॉक्स को सोने से पहले रेडी रखना चाहिए। ओके, इस तरह से आप स्कूल आने से पहले सुबह उन्हें ढूंढने में आप समय बर्बाद नहीं करोगे। Rehan and his classmates learned an important lesson on being organized. They understood that if they keep things at the right place, they will not waste time searching for them. It is important to plan and prepare for our day in advance. It saves time and makes the day more fruitful. रेहान और उसके क्लासमेट ने ऑर्गेनाइज्ड होने पर महत्वपूर्ण सबक सीखा। ये समझ गए कि अगर ये चीज़ों को सही जगह पर रखेंगे तो वो उनके लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहले से ही हमारे दिन की योजना मतलब प्लान, प्रिपरेशन बनाने और तैयार करना महत्वपूर्ण है। ये समय बचता है और दिन को अधिक फ्रूटफुल बनाती है, मतलब फलदायी, मतलब जो अच्छी दिन बनाती है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट रिफ्लेक्शंस। If we are organized in life, we will not waste time finding things. We can plan our routines, save time and do our work in a more systematic way. यदि हम जीवन में ऑर्गेनाइज्ड हैं तो हम चीज़ों को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपनी दिन की योजना बना सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अपने काम सिस्टमेटिक तरीक़ा से कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए। तो बच्चों ये चैप्टर आपको कैसे लगा? आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप कुछ लेसन सीखे होंगे। तो बच्चों आज हमारा यहाँ इस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।